وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ میری محبت، میری اطاعت اور میری جوانی کی ان تمام راتوں کا ایک مجبورانہ انجام تھا جو میں نے اس کے قدموں میں گزار دی تھی۔ میرے ہاتھوں میں موجود وہ اسٹیمپ پیپر بارش کے پانی سے نہیں بلکہ میری آنکھوں سے بہنے والے ان نہ رکنے والے آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا جو شاید اب خون بن چکے تھے۔ میں چیخنا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا کہ ماں آخر کیوں؟ کیا میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ یا وہ بیٹا جس نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ صرف اس لیے عزیز ہو گیا کہ وہ کامیاب تھا؟ مجھے اس وقت اندازہ نہ تھا کہ یہ فیصلہ میری بربادی نہیں بلکہ ایک ایسی راہ کی پہلی سیڑھی ہے جو میری نسل کو سنوار دے گا۔ مگر اس لمحے میں صرف ٹوٹ رہا تھا، کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ میرا نام حسن ہے۔ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں خواب تو بہت اونچے تھے لیکن چھت بہت نیچی۔ ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے ابا ایک ٹرک ڈرائیور تھے، سارا دن رات محنت مشقت کرتے۔ ہم دونوں بھائیوں اور میری ماں باپ کو اچھی زندگی دے سکیں، لیکن زندگی کو شاید ہماری یہ چھوٹی سی خوشی بھی گوارا نہ تھی۔ میں اس وقت بمشکل 2 سال کا تھا اور میرا بڑا بھائی عادل 4 سال کا، جب ایک منحوس دن خبر آئی کہ ابا کا ٹرک گہری کھائی میں گر گیا ہے۔ وہ ہمیں اور اماں کو ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اماں اس وقت جوان تھی، وہ اتنی خوبصورت تھی، محلے کی عورتیں اکثر رقص سے انہیں دیکھتی تھی۔ خاندان والوں اور رشتہ داروں نے بہت زور دیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن اماں نے مجھے اور عادل کو اپنے سینے سے لگایا لیا اور صاف انکار کر دیا۔ نہیں، میرے بچوں کے سر پر ستیلے باپ کا سایہ نہیں پڑے گا۔ میں خود کماؤں گی اور انہیں شیروں کی طرح پالوں گی۔ ماں کی یہ بات سن کر نانی نے غصے سے کہا، رضیہ، ہوش کے ناخن لے، یہ جوانی اور یہ 2 یتیم بچے کیسے پالے گی؟ زمانہ بہت خراب ہے۔ اماں نے آنسو پونجتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، اماں جان، اللہ ہے نا، وہ وسیلہ بھی بنا دے گا۔ میں لوگوں کے کپڑے سی لوں گی، محنت کر لوں گی، مگر اپنے بچوں کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گی۔ اور پھر وہی ہوا۔ ہمارے گھر کے آنگن میں سلائی مشین کی گھر گھر گونجنے لگی۔ وہ گھر جو ابا کی نشانی تھا، وہ ہماری ملکیت تھا، اب وہی ہماری کل کائنات تھا۔ اماں فجر کی نماز کے فوراً بعد مشین پر بیٹھ جاتی اور رات گئے تک کپڑوں کے ڈھیر سے سر نہ اٹھاتی۔ میں چھوٹا تھا مگر فطری طور پر حساس تھا۔ عادل بھائی شروع سے ہی تھوڑے لاپرواہ اور اپنی دنیا میں مگن رہنے والے تھے۔ انہیں کھانے میں اگر بوٹی نہ ملتی تو وہ تھالی سرکا دیتے، مجھے نہیں کھانی یہ دان، میں نے گوشت کھانا ہے۔ عادل بھائی اکثر ضد کرتے، اماں انہیں پیار سے سمجھاتی، میرا چاند آج کھا لو، کل میں تمہارے لیے گوشت بنا لوں گا۔ پھر اماں اپنی پلیٹ سے نوالہ توڑ کر انہیں کھلاتی جبکہ میں چپ چاپ کونے میں بیٹھ کر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا لیتا۔ مجھے اماں کی تھکی ہوئی آنکھیں نظر آتی، اس لیے مجھ سے ضد نہیں ہوتی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اماں نے دن رات ایک کر کے ہمیں اسکول میں داخل کروایا۔ عادل بھائی پڑھائی میں تیز تھے لیکن میرا دل کتابوں میں کم اور اماں کے ہاتھوں میں زیادہ اٹکا رہتا۔ میں دیکھتا کس طرح سوئی بار بار ان کی انگلیوں میں چبھتی ہے، کیسے ان کے مسلسل کمر بیٹھنے سے اکڑ جاتی ہے۔ ایک شام اماں مشین میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کی نظر کمزور ہو رہی تھی، وہ بار بار دھاگا ڈالنے کی کوشش کرتی اور ناکام ہو جاتی۔ اماں نے چونک کر مجھے دیکھا اور مسکرائی، میرا احسان تو اب بڑا ہو گیا ہے اماں، لاؤ میں یہ بٹن بھی ٹانک دیتا ہوں۔ میں نے معصومیت سے کہا، نہیں بیٹا، تم اپنے اسکول کا کام کرو، یہ میرا کام ہے۔ اماں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اماں اسکول کا کام ہو گیا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا۔ میں نے ضد کی۔ بس وہ دن تھا اور پھر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ میں اسکول سے آتے ہی بستہ ایک طرف پھینکتا اور اماں کے پاس بیٹھ جاتا۔ پہلے بٹن ٹانکنا سیکھا، پھر کنجی بنانا، پھر آہستہ آہستہ کینچی پکڑ کر کٹنگ کرنا۔ مجھے کپڑوں کے ٹکڑے جوڑ کر کچھ نیا بنانے میں جو سکون ملتا تھا وہ کتابوں کے الفاظ رٹنے میں نہیں تھا۔ دوسری طرف عادل بھائی اسکول سے آتے ہی کھیلنے نکل جاتے یا دوستوں کے ساتھ گھومتے رہتے۔ انہیں کبھی فکر نہ ہوئی کہ گھر کا راشن کیسے آ رہا ہے یا اماں کی دعا کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ وہ اپنی فرمائشوں کی لمبی فہرست اماں کے سامنے رکھ دیتے اور اماں نہ جانے کیسے اپنا پیٹ کاٹ کر وہ فرمائشیں پوری کرتی۔ جب میں 8ویں جماعت میں تھا تو میں نے ایک فیصلہ کیا۔ ایک رات میں نے اماں کے ہاتھ تھام کر کہا، اماں بس بھی کرو، تم تھک جاتی ہو، کام نہیں کرو گی تو گھر کیسا چلے گا؟ حسن، تمہارے بھائی کی فیس، گھر کا خرچ، ماں۔ اماں کی آواز میں فکر تھی۔ میں ہوں نا اماں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں مزید اسکول نہیں جاؤں گا، مجھے درزی کا کام آ گیا ہے، اب میں دکان پر بیٹھوں گا یا گھر پر ہی کام بڑھاؤں گا۔ اماں تڑپ اٹھی، نہیں احسن، خبردار جو ایسی بات کی، تیرے ابا کا خواب تھا تم دونوں بڑے افسر بنو، عادل بھائی بنیں گے افسر، میں آپ کا بازو بنوں گا۔ میں نے اٹل لہجے میں کہا، اماں مجھ سے اب آپ کی یہ مشقت نہیں دیکھی جاتی،
आदिल भाई को पढ़ने दो, उनका दिल लगता है पढ़ाई में, मेरा दिल तो बस इस मशीन की आवाज़ के साथ धड़कता है। बहुत बहस के बाद आखिरकार अम्मा को हार माननी पड़ी। मैं खुश था, बहुत खुश, क्योंकि अब अम्मा के चेहरे पर थकावट कम और सुकून ज़्यादा था। वक्त के साथ साथ मेरा काम जम गया, मेरा हाथ साफ था और डिज़ाइनिंग की समझ बूझ भी अच्छी थी। मोहल्ले की औरतें अब अम्मा की बजाय मेरे हाथ की सिलाई मांगती थी। हम दोनों माँ बेटा मिलकर काम करते और घर के हालात बेहतर होने लगे। उधर आदिल भाई कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गए। उनका रहन सहन सुहाना होता गया। वो महंगे कपड़े पहनते, दोस्तों के साथ पार्टियों में जाते, घर के अखराजात का साया मेरे नातुआ कंधों पे था। लेकिन मुझे कभी शिकवा ना हुआ। मुझे लगता था ये मेरा फ़र्ज़ है। एक दिन आदिल भाई घर आए। चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और खुशी मिली जुली थी। अम्मा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हम दोनों खाना खा रहे थे। अम्मा ने नवाला रोक के पूछा, क्या हुआ आदिल, सब खैरियत है? अम्मा, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। भाई ने बगैर किसी तहमीद के बम फोड़ा। अम्मा मुस्कुराई, ये तो अच्छी बात है। कौन है लड़की, कहाँ रहती है? वो दरअसल, भाई थोड़ा हिचकिचाए, वो बहुत अमीर घराने से है। उसका नाम निम्रा है। वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसके बाप का बड़ा कारोबार है। मेरे माथे पे शिकन आई। भाई, हम ठहरे मिडिल क्लास लोग, दर्जी का काम करते हैं। वो लोग हमसे रिश्ता क्यों करेंगे? आदिल भाई ने मुझे घूर कर देखा। तुम अपनी सोच छोटी रखना हसन। मैंने निम्रा से बात की है, उसने अपने घर वालों को मना लिया है। बस तुम लोग जाके बात पक्की करो। अम्मा तो खुशी से नहाल थी। बड़े बेटे की खुशी का अरमान हर माँ को होता है। इन्हें इस बात की फिक्र ना थी कि लड़की अमीर है या गरीब। उन्हें बस बेटे की खुशी अजीज़ थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये रिश्ता हमारे हंसते बसते घर को उजाड़ने की पहली ईंट साबित होगा। वो लड़की निम्रा सिर्फ हमारे घर में बहू बन कर नहीं आ रही थी, बल्कि एक तूफान बन के आ रही थी, जो मेरे और अम्मा के सुकून को तहबाला करने वाला था। निम्रा वालों की तरफ से हाँ हो गई, लेकिन ये हाँ अपने साथ बहुत सी अनकही शराइत और दबाव लेके आई थी। वो लोग अमीर लोग थे, बहुत अमीर। उनकी हामी महज आदिल भाई की खुशकिस्मती थी या शायद निम्रा की जिद, वरना हमारा और इनका कोई जोड़ ना था। एक रात आदिल भाई परेशानी के आलम में सहन में टहल रहे थे। मैं मशीन पे बैठा एक सूट का आखिरी पांचा मोड़ रहा था। वो मेरे पास आकर रुके। हसन यार, ये घर, उन्होंने चारों तरफ हसरत से देखा। ये घर निम्रा के शान शान नहीं। मैंने मशीन रोकी और हैरत से उन्हें देखा। भाई, क्या कह रहे हैं आप? अब्बा ने ये घर इतनी मेहनत से बनवाया था, पूरे मोहल्ले में ऐसा पक्का काम, ये पत्थर और टाइलें किसी के घर में नहीं लगी। ये घर तो हमारी पहचान है। वो सब पुरानी बातें हैं। आदल झंझला कर बोले, निम्रा का घर देखा है तुमने? महल है। जब वो यहाँ आएगी तो क्या सोचेगी? मुझे शर्मिंदगी नहीं उठानी। मुझे ये घर अप टू डेट कर चाहिए। नया पेंट, नया फर्नीचर, सब कुछ नया। अम्मा भोरची खाने से चाय लेकर निकली और भाई की बात सुन ली। बेटा, घर तो साफ़ सुथरा है माशाल्लाह, पक्का बना हुआ है। अब मज़ीद खर्चा कहाँ से करेंगे? शादी के इंतज़ामात, बाहरी जेवर पहले ही हसन दिन रात एक किए हुए। आदिल भाई ने चाय का कप अम्मा के हाथ से तकरीबन छीनते हुए कहा, अम्मा आप तो बस गुर्बत का रोना ही रोया करें। मेरी ज़िंदगी का सवाल है। अगर निम्रा को ये घर पसंद ना आया तो मैं कुछ कहने ही वाला था कि अम्मा ने मुझे आंखों से इशारा करके चुप करवा दिया। मैं खामोश हो गया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घुटन होने लगी। उस दिन के बाद से हमारे घर में सुकून नाम की चीज़ ख़त्म हो गई। मैं और अम्मा सुबह सूरज निकलते ही पहले मशीन पे बैठती और रात तक हम काम करते। मेरी आंखें दुखने लगती, कमर में शदीद दर्द उठता, लेकिन जैसे ही आदिल भाई के चेहरे पर इत्मीनान देखता, अपना दर्द भूल जाता। हम दोनों माँ बेटा जितना कमाते, वो घर के राशन के साथ साथ अब घर की सजावट और आदिल भाई की फरमाइशों के नज़र होने लगा। कुछ दिन बाद आदिल भाई यूनिवर्सिटी से फ़ारुग होकर घर आ गए। उनका मास्टर मुकम्मल हो चुका था। मैं खुश था, चलो अब भाई का हाथ बटाने का वक्त आ गया है। एक शाम हम सब बैठे शादी के मेहमानों की लिस्ट बना रहे थे। अम्मा ने मौका गनीमत जाना और बड़े प्यार से बोली, आदिल बेटा, अब तो माशाल्लाह पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है, अब कोई नौकरी देख लो। घर के हालात तुम्हारे सामने हैं, अकेला असन कहाँ कहाँ पूरा पड़ेगा। शादी के अखराजात सर पर खड़े हैं। मैं पुरउम्मीद नज़रों से भाई को देखने लगा कि वो यकीनन हाँ कर देंगे और मेरा बोझ बांटेंगे। लेकिन भाई का जवाब सुनकर मेरे हाथ से कलम छूट गया। उन्होंने लापरवाही से सोफे से टेक लगाई और बोले, अम्मा, अभी तो पढ़ाई से जान छुटी है, अभी से नौकरी की मुसीबत गले में डाल लूँ। मुझे थोड़ा सा आराम करने दो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने दो, और वैसे भी शादी के बाद नौकरी तो करनी ही है सारी उम्र। अभी मुझे अपनी पर्सनैलिटी बनाने दो। शादी वाले घर में दूल्हा थका हुआ मजदूर लगेगा, अच्छा लगता है क्या? लेकिन भाई, मैं बोल पड़ा, शादी में लाखों का खर्चा है, मैं अकेला कैसे?
ओहो, हसन भाई ने मुझे टोक दिया। तुम हमेशा पैसे पैसे करते रहते हो। तुम कमा रहे हो ना, तो क्या हुआ अगर बड़े भाई की खुशी के लिए थोड़ा ज़्यादा काम कर लोगे? ये घर से सब कुछ आखिर हम दोनों का ही तो है। मेरा हिस्सा भी तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना। अम्मा की आंखों में आंसू तैरने लगे। आदल, हसन तुमसे छोटा भाई है, नौकर नहीं। देखो उसका चेहरा जवानी में बूढ़ा लगने लगा है काम कर करके। बस अम्मा प्लीज़ मेरा मूड ख़राब ना करे। आदिल भाई उछल कर उठे और घर से बाहर निकल गए। अम्मा ने बेबसी से मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। कोई बात नहीं अम्मा, भाई ठीक ही तो कह रहे हैं। उनकी शादी है, उन्हें खुश रहने दो। मैं हूं ना, मैं कर लूँगा सब मैनेज। अम्मा ने मुझे गले लगाया और रो पड़ी। हसन, तेरे जैसा बेटा किस्मत वालों को मिलता है। और आदल, न जाने उसे कब अक्ल आएगी। मुझे नहीं पता था कि आदल भाई की ये लापरवाही और खुदगर्जी सिर्फ शुरुआत है। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। घर चमक रहा था, लेकिन उस चमक के पीछे मेरा और अम्मा का पसीना शामिल था। जैसे आदल भाई पानी की तरह बहा रहे थे, और वो तूफान जो निम्रा की शक्ल में आने वाला था, उसकी आहट अब साफ सुनाई दे रही थी। शादी के हंगामे थम चुके थे, घर में लगी हुई लड़ियां उतर गई और मेहमान अपने घरों को लौट गए, लेकिन हमारे घर का सुकून लौट कर न आया। आदल भाई की किस्मत अच्छी थी, शायद निम्रा की किस्मत का असर था, या मेरे भाई की डिग्री काम आ गई। शादी के कुछ ही दिन बाद उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। मैं और अम्मा बहुत खुश थे। हमने शुक्राने के नफल पड़े कि चलो अब घर के हालात मज़ीद बेहतर होंगे और मेरा बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन ये हमारी खुशफहमी बहुत जल्द दूर हो गई। निम्रा भाभी अमीर बाप की बेटी थी, ये तो हमें मालूम था, लेकिन इनके दिल में गुर्बत और गरीबों के लिए इतनी नफ़रत होगी, ये हमें अंदाज़ा नहीं था। शादी को भी जुमा जुमा 8 दिन भी नहीं हुए थे। एक सुबह नाश्ते की मेज़ पर हंगामा हो गया। अम्मा ने प्यार से पराठा निम्रा की प्लेट में रखा। बेटा खा लो, कमज़ोर हो जाओगी। निम्रा ने प्लेट को ऐसे परे धकेला जैसे उसमें ज़हर हो। आंटी प्लीज़, मुझसे ये तेल में तैरते हुए पराठे नहीं खाए जाते, और आप प्लीज़ मेरे मामलात में दखल ना दिया करें। मैं अपनी डाइट खुद देख लूँगी। अम्मा का हाथ वही हवा में रुक गया। मैंने गुस्से से भाई की तरफ देखा, जो खामोशी से मोबाइल पे मगन थे। भाई, भाभी किस लहजे में बात कर रही हैं अम्मा से? आदिल भाई ने सर उठाया और बेजारी से बोले, हसन वो ठीक ही तो कह रही है। वो अलग माहौल से आई है, उसे ये देहाती तरीके पसंद नहीं। तुम और अम्मा उसे एडजस्ट होने का टाइम दो। वक्त गुजरता गया, लेकिन एडजस्टमेंट होने की बजाय दूरियां बढ़ने लगी। अम्मा भाभी को अम्मा की खांसने से मसला था, अम्मा के चलने फिरने से मसला था, हत्ता कि अम्मा की मौजूदगी से भी मसला था। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती और जब मुंह बाहर निकालती तो बना हुआ होता, और फिर वही हुआ जिसका डर था। शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही निम्रा भाभी ने घर में तूफान खड़ा कर दिया। रात का वक्त था, बाई के कमरे से चीखने चलाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं नहीं रह सकती इस घुटन में। आदिल, मुझे अलग घर चाहिए, वरना मैं अपनी डैडी के घर जा रही हूँ। हम दोनों माँ बेटा सहम कर सहन में बैठे थे। थोड़ी देर बाद आदिल भाई बाहर निकले। चेहरा गुस्से से तमतमाया था। सीधा अम्मा के पास आए। अम्मा, अब पानी सर से गुजर चुका है। निम्रा इस घर में सबके साथ नहीं रह सकती, उसे प्राइवेसी चाहिए। अम्मा ने लरजती हुई आवाज़ में पूछा, तो क्या चाहती हो बेटा, हम कहाँ जाएं? आदिल भाई ने नज़रें चुराते हुए कहा, देखिए अम्मा, ये घर तो अब्बा ने बनाया था, लेकिन इसे रेनोवेट मैंने अपनी पसंद से करवाया है निम्रा के लिए। इस घर में अब मेरा हक बनता है। मैं चाहता हूँ ये घर मेरे पास रहे, क्योंकि निम्रा छोटे या कच्चे मकान में नहीं रह सकती। और तुम कह रहे हो कि ये घर तुम्हारा है? ओए, ज़बान संभाल कर बात करो। भाई ने मुझ पे उंगली उठाई। बड़ा हूँ मैं तो, और तू क्या चाहता है? मैं अपनी बीवी को लेकर सड़क पे रहूँ? तो क्या अम्मा सड़क पे रहेंगी? मैं चीखा। बस हसन, खामोश हो जाओ। अम्मा ने गर्जदार आवाज़ में हमें खामोश करवा दिया। अम्मा की आंखों में आंसू नहीं थे, एक अजीब सी वीरानी थी। वो उठी और अपने पुराने संदूक की तरफ गई। वहाँ से कुछ कागजात निकाले और आदिल भाई के सामने रख दिए। ये लो आदिल, ये इस घर के कागजात हैं। ये घर आज से तुम्हारा है, खुश रहो। अम्मा, मैं तड़प के आगे बढ़ा। ये आप क्या कह रही हैं? हम कहाँ जाएंगे? अम्मा ने सर पर हाथ रखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हसन, तेरे अब्बा का एक पुराना मकान है शहर के पुराने हिस्से में। बहुत साल पहले जब हम गांव से आए थे तो वही रहते थे। वो जगह पड़ी है, शायद लोग भूल चुके हैं उसे, लेकिन वो ज़मीन हमारी है। हम वहाँ चले जाएंगे। आदिल भाई के चेहरे पर एक लम्हे के लिए शर्मिंदगी आई, लेकिन निम्रा की मोहब्बत और लालच ने उसे दबा दिया। अम्मा, आप वाकई वही रहेंगी? वो जगह तो खंडर हो गई होगी। अम्मा ने मुड़कर भाई को देखा। मकान खंडर होते हैं बेटा, घर तो दिलों से बनते हैं। जब दिलों में जगह ना रहे तो महल्लात भी खंडर लगते हैं। रख लो ये घर, मुझे और हसन को कुछ नहीं चाहिए। अगली सुबह हम अपना मुख्तसर सामान बांध रहे थे।
भाई ने एक बार भी हमें रोकने की कोशिश न की। भाभी अपने कमरे की खिड़की से हमें देख रही थी। उनके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। जाते वक्त अम्मा दरवाजे पर रुकी। उन्होंने पलटकर उस घर को देखा जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। फिर आदिल भाई के सर पर हाथ फेरा, जो नज़रें झुकाए खड़े थे। खुश रहो आदिल, दूधो नहाओ फूलो, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं। बस इतना याद रखना, माँ की दुआ और बद्दुआ में सिर्फ एक कहा का फ़र्क है। मैं जा रही हूँ, अल्लाह तुझे खुश रखे। मैंने अपना बैग कंधे पे रखा और अम्मा का हाथ थाम कर उस घर से निकल आया, जो कल तक मेरा था मगर आज मेरे लिए पराया हो चुका था। मुझे नहीं मालूम था कि जिस पुराने मकान की तरफ हम जा रहे हैं वहाँ वीरानी और धूल के सिवा हमारा क्या इस्तकबाल करेगा। उस पुराने छत के मकान की छतें कच्ची थी और दीवारों से सीमज़दा ईंटें झांक रही थी। हमने जैसे तैसे सफाई करके कमरा रहने के काबिल बनाया था, लेकिन उसकी गर्द और मिट्टी की ने अम्मा की खांसी को मज़ीद बढ़ा दिया था। मैं दवा की शीशी हाथ में लिए अम्मा के पास बैठा था। अम्मा मुंह खोलें और ये दवा पी लें। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आपने परहेज़ ना किया तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। अम्मा ने दवा पी ली और फिर मेरी कलाई थाम ली। हसन, मेरी बीमारी को छोड़ो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र खाई जा रही है। कब तक यूँ तनहा मेरे लिए रोटियां पकाते रहोगे? मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम्हारा घर बस जाए। मैंने बेबसी से सर झटका। अम्मी, फिर वही बात? आप देख नहीं रही हमारे हालात क्या हैं? इस टूटे हुए मकान में कौन अपनी बेटी देगा? और मैं किस मुँह से किसी लड़की को ब्याह कर रहा हूँ कि वो यहाँ आकर फाके काटे? अल्लाह पे भरोसा रख बेटा, रिस्क देने वाली ज़ात ऊपर बैठी है। मैंने तुम्हारी दूर की खाला से बात की है। उनकी बेटी राबिया बहुत सलीकेमंद और साबर लड़की है। उन्होंने हाँ कर दी है। वो लोग हमारी गुर्बत नहीं बल्कि तुम्हारी शराफत और मेहनत को देख रहे हैं। मैं इनकार करना चाहता था क्योंकि मैं किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता था, लेकिन अम्मा की ज़िद और उनकी गिरती हुई सेहत के सामने मुझे हथियार डालने पड़े। सादगी से निकाह हुआ, ना कोई बारात, ना बैंड बाजा, ना ही कोई बड़ा खाना। बस मस्जिद में निकाह हुआ और रुखसती हो गई। मैं राबिया को लेकर उस वीरान हवेली नुमा मकान में आ गया। कमरे में दाखिल होते ही मुझे शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। छत की कड़ियों पे जाले लटक रहे थे और फर्श भी उखड़ा हुआ था। राबिया खामोशी से चरपाई के किनारे बैठ गई। मैं हिम्मत जमा करके उसके पास गया। राबिया, मुझे माफ़ कर देना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना कोई महल, ना कोई आदिल भाई जैसा सजा हुआ घर, जहाँ कदम कदम पर मुसीबतें हैं। शायद तुम्हें भूखा भी रहना पड़े। अगर तुम चाहो तो अब भी इनकार कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। राबिया ने सर उठाया। उसकी आंखों में खौफ की बजाय एक अजीब सा सुकून था। हसन साहब, मैं जानबूझकर इस घर में आई हूँ। मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे इज्जत और सुकून चाहिए। सुना है जिस घर में बुजुर्गों की खिदमत की जाए वहाँ अल्लाह की रहमत होती है। मैं जहाँ आपका बोझ बांटने आई हूँ, बढ़ाने नहीं। हम मिलकर हालात बदलेंगे। राबिया की बातों ने मेरे दिल से मन बोझ उतार दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दौर में ऐसी लड़कियां मौजूद हैं। अगले ही दिन घर का नक्शा बदलने लगा। राबिया ने घर की ऐसी सफाई की कि वो खंडर पे रहने के काबिल लगने लगा। वो अम्मा का इतना ख्याल रखती कि अम्मा मुझे भूल गई। मुझे ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने मुझ पर कोई ख़ास इनाम किया है। एक शाम में काम से थका हारा घर लौटा तो राबिया ने मुस्कुराते हुए पानी का गिलास मुझे दिया। आज एक खुशखबरी है, अम्मा की तबीयत आज बहुत बेहतर है। उन्होंने खुद उठकर नमाज पढ़ी है। मैंने शुक्र अदा किया। ये सब तुम्हारी खिदमत का सिला है राबिया, वरना मैं तो शायद अम्मा को वो सुकून कभी ना दे पाता। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मोहल्ले का एक दुकानदार खड़ा था। हसन भाई, ये बिजली का बिल है, पिछले 3 माह से अदा नहीं हुआ। अगर कल तक जमा ना करवाया तो मीटर कट जाएगा। मैंने बिल पकड़ा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। रकम मेरी जेब में मौजूद कुल पैसों से कई ज़्यादा थी। मैंने परेशानी से माथा मरा। राबिया मेरे पीछे आ खड़ी हुई। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो अम्मा ने रुखसती के वक्त दिए थे, वो आप ले लें। राबिया ने फ़ौरन कहा, नहीं राबिया, वो तुम्हारे पैसे हैं, मैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरी गैरत ने गवारा ना किया। हम मियाँ बीवी हैं, तेरा मेरा क्या हुआ? मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? उसने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ में कुछ नोट थमा दिए। उस रात मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने मुझसे अगर आलीशान घर छीना था तो उसके बदले मुझे राबिया जैसी नेक सीरत बीवी और अम्मा की दुआएं दी थी। मुझे नहीं मालूम था कि उस पुराने मकान की ज़मीन में क्या राज दफन है, लेकिन मुझे इतना यकीन था कि मेरा असल खजाना मेरी माँ है और मेरी बीवी है। मगर आजमाइश अभी भी ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाया। उनका चेहरा संजीदा था। हसन,
सहन के कोने में जो पुराना नीम का दरख्त है, कल उसे काट दो, मुझे वहाँ कुछ अजीब महसूस होता है। मुझे हैरत हुई, अम्मा वो दरख्त तो साया देता है, इसे क्यों काटना है? बस जो कह रही हूँ वो करो, और हाँ, उस जगह की मिट्टी ज़रा खोद कर नरम कर देना, मैं वहाँ कुछ फूल लगाऊंगी। मुझे क्या मालूम था कि अम्मा मुझसे फूल लगवाना चाहती हैं या कुछ और। मैंने हामी भर ली। क्या पता अम्मा को कोई इल्हाम हुआ हो, या शायद ये महज एक बुजुर्ग का वहम था, लेकिन अम्मा का हुक्म था, टाला नहीं जा सकता था। अगली सुबह सूरज निकलते ही मैंने कदाल उठा ली। राबिया ने मुझे नाश्ता दिया और फिर खुद घर के कामों में लग गई, जबकि मैं सहन के उस कोने में खड़ा था जहां अम्मा ने निशानदेही की थी। मैंने पहला वार ज़मीन पर किया। मिट्टी सख्त थी और बरसों से वीरान पड़ी थी। पसीना मेरी पेशानी से बहकर आंखों में गिर रहा था, लेकिन अम्मा चारपाई पर बैठे मुसलसल मुझे देख रही थी। उनकी नज़रों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने कमीज़ के दामन से माथा पूंछा और अम्मा की तरफ देखा। अम्मा, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम ये मशक्क़त क्यों कर रहे हैं। यहाँ सिवाय ईंटों और पत्थरों के क्या मिलेगा? हम वैसे ही जहाँ फूल लगा सकते हैं। अम्मा ने सख्ती से कहा, सवाल मत करो हसन, बस खोदते जाओ, जितना गहरा कर सकते हो करो। मुझे याद है मैंने निशानी यहीं लगाई थी। राबिया पानी का गिलास लेकर आई। हसन, आप थक गए होंगे, थोड़ी देर सुस्ता लें। अम्मा, आप भी न जाने क्या करवा रही हैं। ज़मीन खोदने से क्या निकल आएगा? अम्मा ने राबिया को घूरा। बहू, तुम बस दुआ करो कि वो चीज़ मिल जाए जो मैं ढूंढ रही हूँ। अगर वो मिल गई तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। मैंने हैरत से अम्मा को देखा। किस्मत? अम्मा, आप किस चीज़ की बात कर रही हैं? वक्त आने पर बताऊंगी, अभी बस अपना हाथ चलाओ। अम्मा ने बात काट दी। मैंने दोबारा खुदाई शुरू कर दी। 2 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद मेरे हाथ शैल हो चुके थे। गड्ढा काफ़ी गहरा हो चुका था। अचानक मेरी कदाल किसी सख्त चीज़ से टकराई। टन की एक भारी आवाज़ आई, जैसे लोहे से टकराया हो। मैं चौंक गया। यह आवाज़ कैसी थी? राबिया भी करीब आ गई। लगता है कोई पत्थर है। मैंने एहतियात से मिट्टी हटाना शुरू की। नहीं राबिया, पत्थर की आवाज़ ऐसी नहीं होती, ये कुछ और है। अम्मा, जो अब तक बैठी थी, तेज़ी से उठकर घड़े के किनारे आ खड़ी हुई। उनकी सांस फूल रही थी। जल्दी करो हसन, मिट्टी हटाओ, देखो क्या है। मैंने हाथों से मिट्टी हटाई तो नीचे एक जंग आलूद दहात की सतह नजर आई। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने मज़ीद ज़ोर लगाकर इर्द गिर्द की मिट्टी साफ़ की तो एक छोटा सा पुराना ट्रंक या संदूक नज़र आया। वो काफ़ी वज़नी लग रहा था और उस पर मिट्टी की तहें जमी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला और सहन के फर्श पर रख दिया। अम्मा, ये क्या है? मैंने हाँफते हुए पूछा। ये तो कोई पुरानी तिजोरी लग रही है। क्या आपको इसके बारे में मालूम था? अम्मा उस जंग आलूद संदूक को देखकर ऐसे रो पड़ी जैसे कोई बिछड़ा हुआ अजीज़ मिल गया हो। वो ज़मीन पर बैठ गई और अपने कांपते हाथों से उस पर जमी मिट्टी साफ करने लगी। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है तेरा कि ये महफूज है। मुझे डर था कि कहीं कोई इसे ना निकाल के ले गया हो। राबिया भी हैरान परेशान खड़ी थी। अम्मा, इसमें है क्या? हमें बताओ तो सही। मैंने आगे बढ़कर उसका ढक्कन खोलने की कोशिश की। उस पर एक बड़ा सा पुराना ताला लगा हुआ था। लाओ, मैं इसे तोड़ देता हूँ, शायद इसमें कुछ काम की चीज़ निकल आए। मैंने कद्दाल उठाई। खबरदार! अम्मा ने चीख कर मुझे रोका और संदूक के ऊपर झुक गई। इसे अभी कोई हाथ नहीं लगाएगा, अभी इसका वक्त नहीं आया। मैं झंझला गया। अम्मा, हद होती है। हमने इतनी मेहनत से इसे निकाला है और आप कह रही हैं कि वक्त नहीं आया। हमारी हालत देखिए, शायद इससे कुछ ऐसा हो कि हमारे फाके ख़त्म कर दे। अम्मा ने संदूक को अपनी गोद में ले लिया। उनका चेहरा बिल्कुल संजीदा था। हसन, ये मेरी अमानत है। ये सिर्फ तब खुलेगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि इसे संभालने वाला हकदार कौन है। अभी तुमने सिर्फ मेरी खिदमत की है, सब्र का इम्तिहान अभी बाकी है। मैं और राबिया एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ये क्या मामला था? आखिर उस जंग आलूद डब्बे में ऐसा क्या था जिसे अम्मा इतने सालों से छुपाई फिर रही थी और अब मिलने के बाद भी हमें दिखाने को तैयार नहीं थी? अम्मा ने राबिया को हुक्म दिया, इसे मेरे कमरे में रख दो और ख़बरदार, जो तुम दोनों में से किसी ने इसे खोलने की कोशिश की, जिस दिन मेरा हुक्म होगा उसी दिन ये ताला टूटेगा। राबिया ने खामोशी से संदूक उठाया और अंदर ले गई। मैं वहीं सहन में बैठा रह गया। मेरे जहन में हज़ारों सवाल थे, लेकिन अम्मा की खामोशी किसी गहरे राज का पता दे रही थी। अभी हम उस दरियाफ्त के शहर में ही थे कि दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। ये दस्तक आम नहीं थी।
بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں گھبرا کے اٹھا، یا اللہ خیر، آپ کون؟ آنسو جاری ہو گئے۔ اماں، یہ کس طرح کی ذلت ہے؟ اپنا سکا بھائی مجھے فقیر سمجھ رہا ہے۔ میرے پاس رابعہ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، آپ کے علاج کے پیسے نہیں۔ کیا شرافت کا صلہ یہی ہے؟ رابعہ میرے پاس بیٹھ گئی اور میری پیٹھ سلانے لگی۔ اماں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آنسو پونجو حسن، مرد رویا نہیں کرتے۔ عادل نے جو دیکھا وہ ظاہر تھا، لیکن جو میں دیکھ رہی ہوں وہ حقیقت ہے۔ کون سی حقیقت اماں؟ میں نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اماں نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ زنگ آلود صندوق تھا۔ وہ حقیقت جو ابھی بند ہے۔ تم نے عادل کے تانے سہے ہیں، صبر کیا ہے۔ اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ آج اس نے تمہیں ٹھکرایا ہے، کل وہ تمہاری دہلیز پہ ہوگا۔ بس تھوڑا سا انتظار کرو، کل وہ صندوق کھلے گا اور تمہارا امتحان ختم ہو جائے گا۔ مجھے اماں کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے ہمت دے رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ عادل بھائی کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ میں چارپائی پر پہلو بدل رہا تھا۔ رابعہ کی آنکھ کھل گئی۔ حسن، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ نہ رابعہ، نیند نہیں آ سکتی۔ میرا اپنا خون مجھے فقیر کہہ گیا۔ کیا یہی صلہ تھا؟ کیا آج میرے پاس تمہیں دینے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں؟ رابعہ نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ ایسی باتیں مت کریں حسن، اللہ دیکھ رہا ہے۔ عادل بھائی کے پاس دولت ہے لیکن سکون نہیں۔ آپ کے پاس ماں کی دعا ہے اور میرا ساتھ ہے۔ دیکھیے گا، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ میں نے لمبی سانس لی۔ بس رابعہ، میرا دل بہت گھبرانے لگا ہے۔ اماں کی باتیں، یہ صندوق، عادل کا رویہ، سب کچھ بہت الجھ گیا ہے۔ صبح ہوئی تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں وضو کر کے نماز پڑھنے گیا ہی تھا کہ اماں کے کمرے سے ان کی کھانسی کی شدید آواز آئی۔ میں اور رابعہ بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں گئے۔ اماں نڈھال سے بستر پر لیٹی تھی۔
ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ اماں کیا ہوا؟ میں ڈاکٹر کو بلا کے لاتا ہوں۔ میں جانے کے لیے مڑا، اماں نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی گرفت میں ابھی بھی وہی پرانی طاقت تھی۔ نہیں حسن، اب ڈاکٹر کا وقت نہیں، اب فیصلے کا وقت ہے۔ میں گھبرا گیا۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اماں نے سامنے رکھی میز کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ زنگ آلود صندوق رکھا تھا۔ اسے اٹھاؤ حسن۔ میں نے حیرت سے صندوق کو دیکھا، پھر اماں کو۔ لیکن اماں، آپ نے کہا تھا ابھی وقت نہیں آیا۔ اماں کی آواز میں ایک عجیب سی وضاحت تھی۔ وقت آ گیا بیٹا، مجھے لگ رہا ہے میری سانس کی ڈوری اب کمزور ہو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی میرے جانے کے بعد تم پریشان پھرو۔ میں اپنی زندگی کا تمہیں تمہارا حق دینا چاہتی ہوں۔ رابعہ نے پانی کا گلاس اماں کے ہونٹوں سے لگایا۔ اماں آپ حوصلہ رکھیں، حسن ابھی اسے کھول دیتے ہیں۔ میں نے کونے سے ہتھوڑی اور چھینی اٹھائی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ہمیں انتظار تھا۔ توڑو اسے، اماں نے حکم دیا۔ میں نے ہتھوڑی کی پہلی ضرب تالے پہ لگائی۔ لوہے کی تیز آواز کمرے میں گونجی۔ تالا پرانا تھا لیکن مضبوط تھا۔ زور سے مارو حسن، ڈرو مت، یہ تمہارا ہی ہے۔ اماں نے حوصلہ دیا۔ میں نے پوری طاقت جمع کی اور دوسری ضرب لگائی۔ یا اللہ مدد! تخت کی آواز کے ساتھ تالا ٹوٹ کر نیچے گر پڑا۔ اماں نے کانپتے ہاتھوں سے اشارہ کیا، کھولو اسے، دیکھو اس میں کیا ہے۔ میں نے آہستہ سے صندوق کا بھاری ڈھکن اوپر اٹھایا۔ ڈھکن کھلتے ہی ایک پرانی سی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ میں نے اندر جھانکا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرا دماغ سن تھا، زبان سے ایک لفظ ادا نہ ہو سکا۔ صندوق کا ڈھکن ہٹا تو اندر کوئی جگہ خالی نہیں تھی، بلکہ وہ اوپر سے نیچے تک بھرا ہوا تھا۔ سب سے اوپر پرانے کپڑوں کی کچھ تہیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کپڑے اٹھائے۔ نیچے سے نکلنے والی سنہری چمک نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ رابعہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، یا اللہ حسن، یہ دیکھیے، یہ تو سونا ہے، خالص سونا۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے ایک بھاری سے مخملی پوٹلی پار نکالی۔ اسے دیکھا تو سونے کے بھاری سیٹ، کنگن، چوڑیاں تھا۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں، یہ سب آپ کے پاس تھا؟ ہم دانے دانے کو ترس رہے تھے اور آپ نے یہ سب چھپا رکھا تھا۔ اماں کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ہاں حسن، یہ تیرے باپ کی کمائی تھی۔ جب تیرا باپ زندہ تھا تو اس نے یہ سب میرے لیے بنوایا تھا۔ میں نے زیورات کے بیچ میں رکھا ہوا تھا ایک طے شدہ کاغذ اٹھایا۔ یہ وہی پرچی تھی جس کا ذکر اماں کرتی تھی۔ میں نے اسے کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس پہ لکھا تھا کہ یہ سب کچھ میرے اس بیٹے کے لیے ہوگا جو مجھے سنبھالے گا، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ میں نے وہ پرچی سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اماں، آپ نے یہ شرط کیوں رکھی؟ میں نے آپ کی خدمت اس سونے چاندی کے لیے نہیں کی تھی، میں تو اللہ کی رضا کے لیے آپ کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے۔ اماں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ چپ کر جا پگلے، میں جانتی ہوں تیری نیت صاف تھی، اس لیے تجھے تیرے حصے میں آیا۔ اگر عادل کے دل میں ذرا بھی رحم ہوتا تو شاید وہ بھی اس کا حقدار ہوتا، لیکن اس نے مجھے بوجھ سمجھا۔ میں نے یہ زیور اس وقت زمین میں دبا دیے تھے جب عادل کی شادی ہوئی تھی، اور مجھے اس کی آنکھوں میں لالچ نظر آنے لگا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ یہ سب بیچ کھائے گا اور تجھے سڑک پہ لے آئے گا۔ رابعہ بھی شکرانے کے آنسو رو رہی تھی۔ حسن، دیکھیے اللہ کے کام، عادل بھائی نے آپ کو اینٹوں کے مکان سے نکالا اور اللہ نے آپ کو سونے کا کان دے دیا۔ میں نے زیورات واپس صندوق میں رکھے۔ میرا دل اب بھی اپنی ماں کی محبت پر بھاری تھا۔ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی کیوں سوچا کہ اماں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ حسن، اماں نے سنجیدگی سے کہا، اب رونا دھونا بند کرو، کل صبح ہی اسی میں سے کچھ زیور بیچ کر آؤ اور اپنا کام شروع کرو۔ میں تجھے اس دنیا میں کسی کا محتاج دیکھ کر نہیں جانا چاہتی۔ میں نے اماں کے ہاتھ چوم لیے۔ اماں، یہ آپ کا حکم ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اب میں آپ کو وہ زندگی دوں گا جس کی آپ حقدار ہیں۔ ہم ابھی خوشی کے ان لمحات میں ہی تھے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ قدرت کا انصاف دوسری طرف بھی شروع ہو چکا ہے۔ جہاں ہمارے گھر میں رحمت برس رہی تھی، وہیں شہر کے دوسرے کونے میں عادل بھائی کے عالیشان گھر میں مکافات عمل دستک دے چکا تھا۔ اگلی صبح میں شہر کے سب سے بڑے صرافہ بازار میں کھڑا تھا۔ میرے سامنے سینٹ حاجی الیاس بیٹھے تھے، جو سونے کی پرکھ میں ماہر مانے جاتے تھے۔ انہوں نے آنکھ پر لگا عدسہ ہٹایا اور حیرت سے مجھے دیکھا۔ حسن میاں، یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ یہ تو شاہی زمانے کا خالص سونا ہے، اس کی کٹائی اور بناوٹ آج کل کے کاروگروں کی بس کی بات ہی نہیں۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، سینٹ صاحب، یہ میری ماں کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہے، مجھے اس کی بہترین قیمت چاہیے، مجھے اپنا کاروبار شروع کرنا ہے۔ سینٹ صاحب نے سر ہلایا اور نوٹوں کی گھڑیاں میرے سامنے رکھ دی۔ یہ لو بیٹا، یہ اتنی رقم ہے کہ تم شہر میں کوئی بھی بڑا کاروبار شروع کر سکتے ہو۔ تمہاری ماں نے تمہارے لیے سچ مچ خزانہ سنبھال رکھا تھا۔ گھر آ کر میں نے وہ رقم اماں کے قدموں میں رکھ دی۔
अम्मा ने कांपते हाथों से मेरे सर पर हाथ फेरा। जा हसन, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत डाले। ये तेरा हक था जो तुझे मिल गया। अब दुनिया को दिखा दे कि माँ की खिदमत रैगा नहीं जाती। मैंने अल्लाह का नाम लेकर कपड़े का कारोबार शुरू किया। अम्मा की दवा मेरे साथ थी। मैं सुबह सवेरे दुकान खोलता और रात के तक मेहनत करता। ग्राहकों का तांता बन गया, माल आता और हाथों हाथ बिक जाता। अल्लाह जिसे गैब से मदद कर रहा हो। चंद ही महीनों में मेरी छोटी सी दुकान एक बड़े शोरूम में बदल गई। मैंने शहर के पोश इलाके में एक नया घर खरीदने का इरादा कर लिया ताकि अम्मा और राबिया को वो सुख दे सकूं जिसकी वो हकदार थी। दूसरी तरफ कुदरत का अपना हिसाब किताब चल रहा था। एक शाम में घर वापस आया तो राबिया परेशानी के आलम में दरवाजे पे खड़ी थी। हसन, आपने सुना? उसने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। मैंने जूते उतारते हुए पूछा, क्या हुआ? खैरियत तो है? राबिया ने पानी का गिलास मुझे पकड़ाया। आज मोहल्ले में बात हो रही थी कि आदिल भाई का दिवालिया निकल गया है। उनके पार्टनर ने सारा पैसा हड़प कर लिया और भाग गया। सुना है बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं। मैं सुन कर दंग रह गया। क्या कह रही हो? आदिल का तो करोड़ों का कारोबार था। हाँ हसन, लेकिन हराम की कमाई और माँ की बददुआ में बड़ी ताकत होती है। राबिया ने अफसोस से कहा। लोग कह रहे हैं बैंक वाले उनका घर नीलाम करने वाले हैं। कर्ज अदा करने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा। मेरा दिल जोर से धड़का। वो वही जिसने मुझे घर से निकाला था आज खुद बेघर होने वाला था। मैंने फौरन अम्मा की तरफ देखा जो तस्बीह पढ़ रही थी। उन्होंने शायद हमारी बात सुन ली थी। अम्मा, आदिल के साथ बहुत बुरा हुआ, मैंने दबी आवाज़ में कहा। अम्मा ने तस्बीह रोक दी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था। हसन, जे मकाफात अमल है। मैंने उसे नहीं बद्दुआ दी थी, लेकिन मेरा दिल दुखा था। अर्श हिल चुक गया था जब उसने अपनी बीमार माँ को धक्के देकर निकाला था। आज उसे मालूम हो गया होगा कि बेबसी क्या होती है। चंद दिन बाद खबर आई कि आदिल भाई का वो आलीशान बंगला बिक गया है। इनकी बेगम जो कभी ज़मीन पर पाँव नहीं रखती थी अब किराए के मकान के लिए धक्के खा रही है। वो जेवर, वो गाड़ियाँ, वो नौकर चाकर सब ख़त्म हो गए थे। आदिल भाई सड़क पे आ चुके थे। मैं अपनी नई गाड़ी में बैठकर अपने शोरूम जा रहा था तो मैंने सड़क के किनारे एक शख्स को सर झुकाए बैठे देखा। वो कोई और नहीं, आदिल भाई थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरे पे शिकस्त की धूल थी। मैंने गाड़ी रोकी। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। मैं कैसे अपने खून को उस हाल पे छोड़ दूँ? अम्मा ने मुझे जो सिखाया था, बुराई का बदला अच्छाई से दूँ। मैं गाड़ी से उतरा, उनकी तरफ बढ़ा। आदिल भाई, मैंने पुकारा। उन्होंने सर उठाकर देखा। उनकी आंखों में मुझे देखकर शर्मिंदगी की बजाय एक अजीब सी बेबसी थी। हसन, तुम यहाँ मेरा तमाशा देखने आए हो? उनकी आवाज़ भर आई। मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा। नहीं भाई, तमाशा दुनिया देखती है, मैं तो भाई हूँ। चलिए गाड़ी में बैठिए। कहाँ? उन्होंने हैरत से पूछा। घर। मैंने मजबूत लहजे में कहा। मेरे घर, क्योंकि उस घर की छत आपके लिए भी है। आदिल भाई मुझे फटी फटी नज़रों से देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था जिस भाई को उन्होंने धिक्कारा था आज वही उनके लिए सहारा बन रहा था। मैं आदिल भाई का हाथ थामे जब अपने आलीशान ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो राबिया हैरत से अपनी जगह पे जम गई। घर की चमक दमक देखकर आदिल भाई की आंखें खुली की खुली रह गई। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए सोफे के किनारे बैठे थे। हसन, आदिल भाई की आवाज़ कांप रही थी। ये सब तुम्हारा है? ये महल, ये गाड़ियाँ, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? मैंने तो तुम्हें मिट्टी में मिला दिया था। भाई, अल्लाह जिसे रखे उसे कोई मिटा नहीं सकता। और मेरे पास तो माँ की दवा का वो हसार था जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकी। उसी लम्हे मुलाजमा अम्मा की व्हील चेयर लेकर कमरे में आई। आदिल भाई अम्मा को देखते ही उनकी कदमों में गिर पड़े। वो बच्चों की तरह बलक बलक कर रो रहे थे। अम्मा, मुझे माफ़ कर दी, मैं अंधा हो गया था। दौलत की हवस ने मुझे जानवर बना दिया था। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना घर, ना दौलत, ना इज्जत। अम्मा ने कांपते हाथों से आदिल के सर पे हाथ रखा। आदिल, मैं तुझे माफ़ किया, अल्लाह तुझे हदायत दे। आदिल भाई के आंसू पूंछते हुए मेरी तरफ देखा। हसन, मैं कंगाल हो गया हूँ, लेकिन तुम इतने कम अरसे में इतने ऊपर कैसे चले गए? मैं उठा और अलमारी से वो जंग आलूद संदूक और ख़ास पर्ची निकाल लाया। मैंने वो पर्ची आदिल भाई के हाथ में थमाई। ये पढ़िए भाई, ये वो राज है जो अम्मा ने सालों से सीने में दबा रखा था। आदिल भाई ने आवाज़ बुलंद पड़ा। ये सब कुछ उस बेटे के लिए होगा जो मुझे संभालेगा, जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। उनके हाथ से पर्ची गिर गई। मैंने नरमी से कहा, भाई, जिस पुराने घर को आपने कबाड़ समझकर मेरे हवाले किया था उसकी ज़मीन में अम्मा ने अब्बा के ज़माने के ढेरों सोना दबा रखा था। माँ मेरी खिदमत का बदला सोने से चुकाना चाहती थी, लेकिन मैं रो पड़ा था क्योंकि मैंने खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए की थी। लेकिन अल्लाह ने मेरे खलूस की कदर रख ली और ये ख़जाना मेरी झोली में डाल दिया। आदिल भाई पथराए हुए वजूद के साथ मुझे देख रहे थे। उन्हें आज एहसास हुआ कि उन्होंने बूढ़ी माँ को घर से निकालकर दरअसल अपनी किस्मत को लात मारी थी। मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा। आप फिक्र न करें भाई, ये घर आपका भी है।
آپ جہاں جب تک چاہیں رہ سکتے ہیں، آپ کی تمام ضروریات پوری ہوں گی۔ میں نے عادل بھائی کو چھت دی، کھانا دیا اور عزت دی، تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ کبھی اس گھر کے مالک تھے اور آج محتاج ہیں۔ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا، کیونکہ میرے سر پر ماں کا سایہ اور اونٹوں پہ ان کی دوا تھی، جبکہ دوسری طرف عادل بھائی سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ تھے۔ وہ اس گھر میں ضرور رہتے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک حسرت اور پچھتاوا رہتا تھا۔ وہ سکون اور محبت سے محروم رہے جو صرف ماں کی آغوش میں ہے۔ اولاد کو لگتا ہے کہ وہ ماں باپ کو پال رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے خود پل رہے ہوتے ہیں۔ جس گھر میں والدین کی قدر نہیں ہوتی، وہاں سے رحمتیں، برکتیں ہمیشہ کے لیے روٹھ جاتی ہیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔